Hello friends, welcome to SIDS Chemistry. We love to educate. Now let us start our session number 3. In the session number 3, we are going to understand various numericals and we are going to develop various ideas. In the last two sessions, you understood about the different formulas and interconnection between different formulas. Now in today's session, you are going to learn about the developing ideas and applying these formulas in different types of numericals. So let us start our today's session. Thank you. Hello friends, welcome to the session number 3 for the JEE NEET and other competitive examinations. We are learning chapter solution and colligative properties, and today we are going to understand various numericals and we are developing ideas how to interconnect the numericals and formulas in our concepts. So let us start today's session. Over the screen, you can see on the screen that numericals for developing ideas. You can write numericals for developing ideas. Now our first numerical, as you can see that it is asked that calculate the masses of cane sugar and water required to prepare 250 gram of 25% cane sugar solution. Now in this question, first of all, we need to understand what is the concept and what we are going to do. For any numericals, अगर हमें कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमें 5 पॉइंट का जो स्टेप्स होता है वो अच्छे से याद करना होता है. वो 5 स्टेप्स कौन से हैं? लेट अस अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट 5 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप जैसे कि यहाँ पे हमने आपको दिखाया हुआ है. वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट understand the question properly. You have to understand the question very properly, what is asked, and unless you don't understand the question properly and when you are directly starting over the making the data, that will won't work. So first of all, you need to understand the question. Second is that to prepare data given. जो भी डेटा आपको गिवन है उसको अच्छे से लिस्ट आउट कीजिए. जो भी डेटा आपको अवेलेबल है उसको समझने का ट्राई कीजिए. Then apply the formula or logic. You have to remember different formulas, okay, and therefore you need to make a list of formulas, and when you are appearing in the examination you should be ready with all the formulas. So आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है या तो लॉजिक कौन सा अप्लाई करना है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, and then you can easily solve the numericals. Very important fourth step is that apply the maths. मैथ्स को अप्लाई कीजिए. मैथ्स अप्लाई करने के लिए आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स होने चाहिए. अगर नहीं है तो उसको भी डेवलप कीजिए, उसको भी लर्न कीजिए, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें समझना चाहिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज राइट द यूनिट एंड कन्वर्ट द पर्टिकुलर डिजायर्ड यूनिट. अगर आपको कोई पर्टिकुलर यूनिट में आंसर मांगा हुआ है तो आप उस पर्टिकुलर यूनिट के अकॉर्डिंगली अपने आंसर को कन्वर्ट कीजिए. सो ये 5 स्टेप्स हैं. नंबर 1 स्टेप इज दैट अंडरस्टैंड क्वेश्चन. नंबर 2 प्रिपेयर डेटा. नंबर 3 अप्लाई फॉर्मूला. नंबर 4 अप्लाई मैथ्स. एंड नंबर 5 राइट द यूनिट्स. अगर आपने यूनिट अच्छे से लिखा हुआ है तो ही आपको उसके मार्क्स मिल सकते हैं. एज फार एज NCERT बोर्ड कंसर्न आपको यूनिट मेंशन करना है, अदरवाइज आपको JEE या नीट या तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो यूनिट गिवन होते हैं ऑप्शंस में अकॉर्डिंगली उनको कन्वर्ट करना होता है. तो ये 5 स्टेप्स की प्रोसेस आपको अच्छे से समझनी है, एंड वी विल अप्लाई टुडे all these 5 steps to make you more understand in this such kind of numericals. Now let us first of all again reading the question 1, that is calculate the masses of cane sugar and water required to prepare 250 gram of 25% cane sugar solution. Now dear friends, let us first of all prepare the data which is given. We are asked to calculate masses. So हमें डेटा बनाना पड़ेगा. डेटा के लिए हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 250 ग्राम.
we have asked that you prepare 250 gram solution and percentage W by W, percentage by mass आपको given है वो है 25%. सो अगर हम इसको डिकोड करें, हमारे जो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको डिकोड करना सिखाया था उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं. 25% सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसके अंदर 25 ग्राम शुगर होती है और वो जो चीज़ होती है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन के हिसाब से बनी होती है. नाउ इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. So if you want to convert 100 gram into 250 gram, you need to multiply 100 with the 2.5. So it will automatically prepare 250 gram of solution. लेकिन अगर आप 100 को 250 में कन्वर्ट कर रहे हो तो सेम वे आपको शुगर वाला जो पार्ट है, जो यहाँ पे 25 ग्राम शुगर दिखाया गया है, उसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो बोथ द वे वी आर डूइंग द सेम थिंग. सो हमने दोनों केस में यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि हमें हमारा डिज़ायर्ड कॉन्सेंट्रेशन और डिज़ायर्ड सॉल्यूशन के जो ग्राम है वो हमें अवेलेबल हो जाए. तो यहाँ पे 250 ग्राम सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और जब आप 25 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 62.5 ग्राम शुगर की क्वांटिटी मिलेगी. नाउ अगर हम इस 250 ग्राम सॉल्यूशन में से 62.5 ग्राम शुगर को डिडक्ट कर लें, देन वी विल बी हैविंग ए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट. एंड जब भी मास मेंशन नहीं, पर्टिकुलर लिक्विड मेंशन नहीं किया गया हो तो वो वाटर होता है. देयरफॉर द 187.5 ग्राम इज द रिमेनिंग अमाउंट दैट इज सॉल्वेंट एंड वाटर वी कॉल. सो इट इज़ अ मास ऑफ वाटर. सो यहाँ तक हमने उनके मासेस निकाल दिए एंड दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सो अगर क्वेश्चन को पढ़े वापिस से तो व्हाट वी हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन, इफ यू रीड, वी हैव आस्क्ड टू कैलकुलेट द मासेस ओनली. सो हमने दोनों केस में मासेस को निकाल लिया है एंड दैट इज़ हाउ यू कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स. इट इज़ अ काइंड ऑफ डिकोडिंग पैटर्न. अगर यहाँ पे 250 ग्राम सॉल्यूशन की वजह 300 ग्राम सॉल्यूशन दिया होता तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 3 बोथ द साइड्स एंड यू विल गेट योर आंसर अकॉर्डिंगली. सिमिलरली वट एवर इज गिवन, डिकोडिंग पैटर्न शुड बी लाइक दिस ओनली. सो सबसे ईजी तरीका है डिकोडिंग करने का और यहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा लॉजिक से हमने डिकोड कर लिया और हमारा आंसर हमें मिल गया. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज. Our next question says that, first of all, let us read the question. The density of solution containing 13% by mass of sulfuric acid is 1.09 gram per ml. So हमें यहाँ पे डेंसिटी गिवन है तो हमने डेटा बनाने में पहले तो डेंसिटी मेंशन कर ली. डेंसिटी इज़ 1.09 ग्राम पर ml. ग्राम पर ml भी हो सकता है, वो ग्राम पर cc भी हो सकता है. सो cc एंड ml सेम होता है जो हमने आपको लास्ट सेशन में समझा दिया है. देन परसेंटेज W by W सॉल्यूशन के आपको गिवन है, दैट इज़ 13% W by W सॉल्यूशन इज गिवन टू यू. देन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी दे वाज. See what is the question. Let us go further. Reading question. Calculate the molarity and normality of solution. So molarity and normality आपको find करनी है. So अगर हम याद करें हमने पिछले सेशंस में एक रिलेशनशिप बिटवीन द फॉर्मूलाज वाला टॉपिक पढ़ा था और उसमें हमने परसेंटेज W by W एंड मोलारिटी को कनेक्ट करें ऐसा एक फार्मूला भी पढ़ा था जिसको हम शॉर्टकट फार्मूला या तो स्पेशल फार्मूलाज बोलते हैं. तो अगर यहाँ पे हम वो स्पेशल फार्मूला अप्लाई कर ले तो हमें हमारा आंसर एक ही पॉइंट से मिल सकता है. यू कैन सी दैट द फार्मूला वाज मोलारिटी इज इक्वल टू is equal to percentage W by W into density into 10 upon molar mass of the solute. Here the molar mass of solute is 98 because the sulfuric acid is given and sulfuric acid molar mass is 98 gram per mole. So we will take that 98. So percentage W by W is given, that is 13.
1.09 that is given density gram per cc, then 10 is itself present in the formula, and M2 is nothing but the 98 for the sulfuric acid, so which is mentioned in the side panel. Now अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो you will be easily getting your answer, that is molarity 1.445 molar. So this is how you can calculate the molarity. Now अगर हम नॉर्मालिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नॉर्मालिटी और मोलारिटी को कनेक्ट करने वाला भी हमारे पास एक फॉर्मूला है. सो फॉर्मूला है नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर. नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर. सो अगर सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर हमें मालूम है तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. एंड फॉर सल्फ्यूरिक एसिड द एन फैक्टर और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आर 2. So n factor is 2 and we will apply that n factor. We have already answer of molarity with us. So हम molarity यहाँ पे रख देंगे, हम n factor को यहाँ पे mention कर देंगे, and then we will be having answer that is 2.89, that is double the molarity. So हमारा normality का आंसर हो जाएगा 2.89 normal. ये जो कैपिटल n हमने पीछे लिखा हुआ है वो यूनिट है, और अगर हम इसको n ना लिखे तो नॉर्मल एक वर्ड भी लिख सकते हैं. सिमिलरली मोलारिटी के लिए हम कैपिटल M मेंशन करते हैं एज ए यूनिट. अगर हम वो मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो हम मोलर वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, या तो मोल पर लीटर भी ऐड कर सकते हैं. सो दीज आर द टू आंसर्स एंड डायरेक्ट फार्मूला वी हैव अप्लाइड. मैं फिर से वो फार्मूला को एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि विच फार्मूला कनेक्ट्स द परसेंटेज W/W and molarity, and very simple formula, molarity is equal to percentage W/W into density of the solution into 10 upon molecular mass of the solute. So this is how you can easily solve such kind of numerical. Now let us go further to understand our next question on the next page. On the next page you can see that our question is calculate the molarity of pure water. Actually the question is very simple, but it was tricky that nothing is given, no data is given. So जब भी कोई डेटा गिवन नहीं है तब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. माने कि ये क्वेश्चन बारी बारी से जेई और नीट एग्जामिनेशन में किसी ना किसी फॉर्म में पूछा गया है. सो हमें इस क्वेश्चन को लेके चलना है क्योंकि ये हमें बहुत जगह पे हेल्प भी करेगा. एंड वी ऑल नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml. सो पानी के लिए ml और ग्राम सेम होते हैं. इफ़ यू टेक 200 ग्राम ऑफ वाटर इट विल बी 200 ml ऑफ वाटर. सो considering we are going to find out the molarity of pure water. So we are considering that 1000 ml of water we are taking and density is 1 gram per ml. If you want to find out molarity, very simple formula, it's a mole per liter. So हमें पानी के मोल चाहिए और हमें क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए. ऑलरेडी हमने अज्यूम तो कर ही लिया कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी 1000 ml या तो 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन वी कैन टेक. सो अगर हम लीटर को कंसिडर करें तो 1 लीटर हो जाएगा. नाउ इस फॉर्मूला को अगर डिकोड किया जाए तो W2 अपॉन M2, W2 refers to the mass of the solute and M2 refers to the molecular mass of the solute, while 1000 is already present because we are converting liter into the ml. So at the denominator we have to write the V ml of solution. So if we are like thinking this is a pure water and it is not a solution, so it is only a solvent and we are going to find out the molarity of solvent. So अगर हम इसको solution ना भी बोले और solvent ही बोल दे तो भी चलेगा because there is nothing solute is added. So simply 1000 gram we assume as a mass of the water. So we keep 1000 here as a W2. Molecular mass of water is 18. Then 1000 already present in the formula, and 1000 gram is a solution mass. So this 1000 will be cancelled and you will be getting 1000 upon 18. So
The final answer for this question will be very famous answer, molarity of water. अगर कोई डायरेक्टली भी पूछ ले, बहुत सारी जगह पे पूछा गया क्वेश्चन है, so it will come to the 55.55 molar. So we have to mention the unit capital M, या तो वर्ड में लिख लीजिए molar. So this is how you can solve the molarity of pure water, and remember this point because it is a very important point. In some concepts learning also it is a taking part. तो आप कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी NCERT बुक्स में पढ़ते हो जो इसमें ये पानी की मोलरिटी को 55.55 मोलर कंसिडर किया जाता है. सो हमें ये ध्यान रखना है. नाउ लेट अस गो टू दी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. And before we go to the next question, we are given several practice problem जो आपको solve करना है. मैं आपको उनकी हिंट दे देता हूँ. ये दो क्वेश्चन जो यहाँ पे गिवन है जो आपको अच्छे से सॉल्व करना है. पहले तो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रस. सोडियम कार्बोनेट पहले तो क्या है और उसकी क्वांटिटी हमें निकालनी है. सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 और एनहाइड्रस का मतलब है कि उससे साथ कोई पानी का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ नहीं है. सो पानी नहीं जुड़ता है तो उसको बोलते हैं एनहाइड्रस, और पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रस. नाउ इन दिस केस इट इज एनहाइड्रस, सो वी विल नॉट कंसिडर वाटर मॉलिक्यूल whether they are present or not, वो एब्सेंटी हो गए. और सोडियम कार्बोनेट है उसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3. सो आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ कि सोडियम कार्बोनेट इज नथिंग बट Na2CO3. नाउ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml M/10 सॉल्यूशन. 250 ml माने के आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है एंड M/10 सॉल्यूशन. M/10 का मतलब हो गया कि मोलरिटी है 1/10. सो वी विल टेक मोलरिटी 1/10. सीधा मोलरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लीजिए. एंड मोलरिटी जो कैपिटल M होता है, जैसे कि हम फॉर्मूला लिखे तो मोलरिटी इज इक्वल टू W2/M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी 250 ml. Molarity of the solution will be 1/10 because it is M/10 का मतलब होता है 1/10. Then W2 you are going to find out. मोलर मास आप निकाल लीजिए Na2CO3 का. एटॉमिक मासेस आप रिफर कर सकते हो. सोडियम का 23 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है. उनको उनके नंबर के हिसाब से फॉर्मूला के हिसाब से एडअप कर लीजिए और उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के आप डिनोमिनेटर में रख दीजिए. You will easily get the answer of this question. Now our second question for the practice is that we have given 214.2 gram sugar syrup. शुगर सिरप का मतलब होता है शुगर सॉल्यूशन. याद रखिए, शुगर सिरप का मतलब होता है शुगर सॉल्यूशन. कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर. तो ये जो सॉल्यूशन है उसमें 34.2 ग्राम शुगर है. एंड शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11. शुगर एक सुक्रोज होती है और उसका फॉर्मूला होता है, आई विल राइट डाउन, C12H22O11 that is a sugar molecule. And what we are going to find out, हमें क्या निकालना है? We are going to find out molality of the solution and mole fraction of the solution, mole fraction of the sugar in the syrup. सो फ्रेंड्स, ये दोनों वेट बेस्ड यूनिट्स आपको फाइंड करना है. मोलालिटी के लिए आपको फॉर्मूला लगाए तो मोल पर किलोग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट. सो आप इजीली आप इस डेटा को जनरेट कर सकते हैं बिकॉज आपको सॉल्यूट के ग्राम गिवन है, आपको सॉल्यूशन के ग्राम गिवन है. तो आप इजीली सॉल्वेंट के ग्राम रिडक्शन से निकाल लीजिए और यहाँ पे मोलालिटी फाइंड कर लीजिए एंड मोल फ्रैक्शन भी फाइंड कर लीजिए. मोल फ्रैक्शन के लिए शुगर के मोल निकालने पड़ेंगे और वाटर के मोल निकालने पड़ेंगे जो आपको इजीली इस डेटा से मिल जाएंगे. एंड इजीली यू कैन आल्सो कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन. सो दीज आर वेरी लाइक रिफ्रेशमेंट काइंड ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है. इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए.
एंड वी हैव ऑल्सो मेंशन दी आंसर्स। तो आपको आंसर भी चेक करना है तो ये आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं एंड यू कैन गेट द आंसर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस वेरी इजीली। सो लेट अस गो टू दी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जाएंगे, तो आपको बस उस आइडियाज़ को याद रखना है। जैसे हमने पीछे भी कुछ फॉर्मूला को कनेक्ट कर दिया, हमने कनेक्ट किया मोलैरिटी नॉर्मलिटी को, हमने कनेक्ट किया परसेंटेज को मोलैरिटी से। सो इन फॉर्मूलाज को याद रखते जाइए। नाउ लेट अस गो टू दी आवर नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. So what is the question? Let us read. A solution contains 410.3 gram of sulfuric acid. So आपको सल्फ्यूरिक एसिड का मास गिवन है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो आपको 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का मास गिवन है, दैट इज 410.3 ग्राम एंड विच इज़ मेंटेन एट 20 डिग्री सेल्सियस। कोई भी एक्सपेरिमेंट होते हैं तो पर्टिकुलर टेम्परेचर में या पर्टिकुलर लैब की रिक्वायरमेंट को सेट करके होते हैं। तो यहाँ पे वो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा गया है, दैट इज़ फॉर रेफरेंस। if the density is 1.243 ग्राम पर ml, हमें डेंसिटी गिवन है यहाँ पे, what will be molarity and molality? सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ें तो आपको मोलैरिटी गिवन है, आपको सॉल्यूशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के ग्राम गिवन है और आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है एक्चुअली। तो डेंसिटी भी गिवन है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे पहले तो मोलैरिटी निकालने के लिए मोल पर लीटर निकालना पड़ेगा और मोल निकालने के लिए आपको वेट अपॉन मोलर मास करना पड़ेगा, तो आप इजीली कर सकते हो। तो और लीटर ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे पर लीटर सॉल्यूशन गिवन है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस प्रिपेयर डेटा। मास ऑफ H2SO विच इज गिवन 410.3 ग्राम। मोलर मास ऑफ H2SO4 याद रख लीजिए, बारी बारी से जेईई नीट में आएगा, उस वक्त हम ऐसे कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे कि H2SO4 के एटॉमिक मास को ऐड कर दिया और 98 हो गया, बिकॉज इट इज़ अ फ्रिक्वेंट क्वेश्चन। सो आपको 98 याद ही रख लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड ग्राम पर मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर जो आपको ऑलरेडी गिवन है। सो आपके पास दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों से आप मोल निकाल लीजिए और लीटर सॉल्यूशन का तो गिवन है, मोल पर लीटर आपको मोलैरिटी इजीली मिल जाएगी। एंड द डेंसिटी इज़ गिवन, और डेंसिटी गिवन है तो हमें मोलैरिटी निकालने में बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास ऐसा भी एक फॉर्मूला है जो मोलैलिटी और मोलैरिटी को कनेक्ट करता है, बस उसमें एक ज़रूरत होती है डेंसिटी की, और वो डेंसिटी यहाँ पे हमें गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट मोलैरिटी, दैट इज मोल पर लीटर, एंड ऑल दी वैल्यूज आर केप्ट। W2 अपॉन M2, W2 हमारे लिए 410.3 है, M2 98 है, 1000 फॉर्मूला का पार्ट है और 1000 जो हमने लीटर को ml में कन्वर्ट कर दिया वो है। सो 1000 यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट 4.186 मोलर सॉल्यूशन, एंड दैट इज द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। नाउ अगर हम शॉर्टकट फॉर्मूला को रिकनेक्ट करें हमारे पिछले सेशन में, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था and that formula was like this: 1 upon molality, small m का मतलब होता है molality, is equal to density of the solution upon molarity। ये जो है that is molarity है। so remember capital M जब भी आएगा आप molarity समझोगे और small m जब भी आएगा आप molality समझोगे। और M2 का मतलब होता है, जैसे 2 नंबर का कोड हमेशा आपको याद रखना है। 2 नंबर जब भी हमने लिखा है या तो कहीं भी और भी जगह पे मेंशन किया है तो वो होता है सॉल्यूट, और ये सॉल्यूट का मोलेक्युलर मास है और 1000। बस इस फॉर्मूला में हमने जो भी वैल्यूज़ गिवन थी, जो भी डाटा गिवन था, उसको यहाँ पे पुट अप कर दिया है। एंड वी जस्ट वांट टू मेक इट श्योर कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छे से कर लीजिए, तो आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। और मोलैरिटी इसकी मिल जाएगी 5.027।
So this is the answer of the this question. Molarity and molarity you obtain. सो पहला फॉर्मूला सिंपल था, मोल पर लीटर. दूसरा फॉर्मूला कनेक्शन वाला फॉर्मूला था. रिपीट दैट फॉर्मूला. 1 अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मोलरिटी माइनस m2 अपॉन 1000. सो आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, फटाफट से क्वेश्चंस के आंसर निकालता है, तो याद रख लीजिए. और चलो कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी इसके जो गिवन है वो उसको हम समझ लेते हैं. मैं आपको हिंट प्रोवाइड करूँगा, जस्ट आपको उसको सॉल्व कर देना है. सो व्हाट वाज द क्वेश्चन, लेट अस रीड. द डेंसिटी ऑफ ए 2.03 मोलर सॉल्यूशन. सो मोलरिटी आपको गिवन है. एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो होता है वो CH3COOH होता है, जिसका मोलर मास 60 होता है, वो याद रख लीजिए, अदरवाइज आप कैलकुलेट भी कर सकते हो. इन वाटर इज 1.017 ग्राम पर ml. ग्राम पर ml भी लिखा हो सकता है, वो ग्राम पर cc भी लिखा हो सकता है. सो आपको अकॉर्डिंगली उसको लिखना है. कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. जब आपको डेंसिटी गिवन है, जब आपको मोलैरिटी गिवन है और मोलर मास भी गिवन है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा जो अभी हमने पढ़ा, जो स्क्रीन पे आपको ऊपर की ओर दिख रहा है. दैट इज 1 अपॉन m इज इक्वल टू d अपॉन कैपिटल M माइनस m2 अपॉन 1000. आप डायरेक्टली इस चीज़ों को यहाँ पे पुटअप कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर. दैट इज 2.267. यू विल बी गेटिंग योर आंसर. मैथमेटिक्स अच्छे से करना है ताकि आपके आंसर्स गलत ना हो. तो ये आपका डायरेक्ट कनेक्शन था और ये फॉर्मूला हमने देख लिया. नाउ लेट अस गो टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज. डियर फ्रेंड्स, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं. एक्सक्यूज मी. एक ही क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन गिवन है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ लेट अस read the question first. The density of 3 molar sodium thiosulfate solution is 1.25 ग्राम पर ml. सो डेटा हम बनाना स्टार्ट ही कर लेते हैं साथ साथ में. मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ गिवन 3 मोलर. डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ गिवन 1.25 ग्राम पर ml, ग्राम पर cc, जो डेंसिटी आपको गिवन है. Now let us read. Calculate the percentage by mass of sodium thiosulfate. Calculate the percentage by mass of sodium thiosulfate. So वो हो जाएगा percentage W by W जो आपको निकालना है. Then second was the mole fraction of sodium thiosulfate. तो mole fraction जिसको हम X कोड करते हैं वो आपको निकालना है. Then molality of Na प्लस आयन एंड H2O3 2 माइनस आयन. आपको इन दोनों आयन्स की मोलैलिटी निकालनी है. नाउ डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू आइडिया अबाउट सोडियम थायोसल्फेट. सोडियम थायोसल्फेट एक्सक्यूज मी Na2H2O3 होता है, और जिसका फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में भी गिवन है. तो यू शुड नोटिस दैट Na2H2O3, अगर इसको हम वाटर में डिसोशिएट करते हैं तो वी विल बी गेटिंग 2 आयन्स, दैट इज Na प्लस एंड H2O3 2 माइनस. सो अगर बैलेंस कर दिया जाए तो आपको 2 Na प्लस मिलेंगे और एक H2O3 2 माइनस आयन थायोसल्फेट आयन मिलेगा. ये कुछ इन्फॉर्मेशन है. जब भी आप कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हो तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं जो आपको आपके एनसीईआरटी बुक में शायद कम मिलेंगे, लेकिन ये जेईई नीट एग्जामिनेशन या तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूज़ कर लेते हैं. तो बस इन वर्ड्स को या इन नए मॉलिक्यूल्स को अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से याद रखने का ट्राई भी कीजिए. नाउ अगर आप इसका मोलर मास सोडियम थायोसल्फेट का निकालते हैं तो दैट विल बी 158 ग्राम पर मोल. वो आपको निकाल लेना है बिकॉज हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी.
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको निकालना है परसेंटेज W/W। आपके पास मोलरिटी है, आपके पास डेंसिटी है, तो आपके पास परसेंटेज W/W निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी आगे क्वेश्चन में पढ़ लिया। तो मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, एंड सॉल्यूट हियर इज सोडियम थायोसल्फेट। सो हमने सारा डेटा यहाँ पे रख दिया एंड वी आर गेटिंग परसेंटेज W/W, दैट विल बी, आंसर विल बी 37.92 परसेंटेज W/W इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन था कि हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ द Na2S2O3। अब किसी पर्टिकुलर चीज़ के मोल फ्रैक्शन आपको सॉल्यूशन में निकालने हैं तो आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के मासेस मालूम होने चाहिए, और एक बार मास मिल जाए तो आपको उनको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको दोनों के मोल फ्रैक्शन मिल सकते हैं। In this case we have already just got the percentage W/W right now, तो हम इसको डिकोड करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं, और उस मास से हम उनके मोल निकाल लेंगे और मोल से हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन जनरेट हुई तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं। नाउ बिफोर वी गो लेट अस फाइंडिंग द मास ऑफ द सॉल्यूशन। पहले तो मास ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके हमें परसेंटेज को किस क्वांटिटी ऑफ मास के लिए ढूंढना है वो हमें पता चलेगा। हमें ऑलरेडी डेंसिटी गिवन है, दैट इज़ 1.25 ग्राम पर ml, एंड वॉल्यूम हमें 1000 ml लेना है, बिकॉज मोलर वॉल्यूम बोलते हैं जिसको, मोलर वॉल्यूम हमेशा 1000 रहता है। मोलरिटी की डेफिनेशन थी कि हाउ मेनी मोल्स आर डिजॉल्व इन 1000 ml या तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सो इसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। जब आप डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उसका मास मिलता है, एंड मास वी गॉट 1250 ग्राम। ये 1250 ग्राम ए मास ऑफ सॉल्यूशन है, एंड दिस मच क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। आपको ये जो परसेंटेज यहाँ पे है, दैट परसेंटेज गिव्स आइडिया फॉर द 100 ग्राम सॉल्यूशन, बट वी हैव टू गेट आइडिया फॉर द 1250 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। सो हमें जो भी आंसर्स मिलते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के या तो सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन के ग्राम के, उसको 12.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई विद द 12.5 वी विल ऑटोमेटिकली गेट द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एग्जैक्ट ग्राम इन दिस 1250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सो सबसे पहले तो इसको डिकोड करते हैं। हमारा डिकोड करने का तरीका आप सबको मालूम है, दैट इज़ 37.92 परसेंटेज का मतलब होता है 37.92 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट एंड 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रेजेंट। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज वी विल कन्वर्ट these values for the 1250 gram of the solution. So it is written that multiplying both the sides with 12.5 to get 1250 gram mass of the solution. हम दोनों तरफ 12.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हम 100 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें सॉल्यूशन का जो डिज़ायर्ड मास है दैट इज़ 1250 ग्राम वो मिल जाएगा, और अकॉर्डिंगली हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सॉल्यूट के मास को, तो वी विल बी गेटिंग 474 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट प्रेजेंट इन 1250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर हमें सॉल्यूट से सॉल्वेंट का निकालना है मास तो हमें सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास को डिडक्ट करना पड़ेगा, और वो हमने यहाँ पे डिडक्ट किया है, तो हमें पानी का जो मास मिला है दैट इज़ 776 ग्राम। हम सॉल्यूट के मास को W2 कंसिडर करते हैं, सॉल्वेंट के मास को हम W1 कंसिडर करते हैं। नाउ जैसे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे, तो कंटिन्यूइंग द गेटिंग द मोल्स ऑफ द सोडियम थायोसल्फेट, मोल्स को हम N2 बोल देंगे, W2 upon M2, so we will be getting 474 upon 158 is equal to 3. moles of water अगर निकाल लेंगे तो N1 is equal to W1 upon M1, 776 upon 18, so we will be getting 43.1. so these two values, that is 3 and 43.1, are the moles of sodium thiosulfate and water respectively. बस इसका यूज़ करके मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत ईजी है।
जैसे हमें पूछा गया है कि सोडियम थायोसल्फेट के आप मोल निकालिए, सो मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N2 प्लस N1 मीन्स कंपोनेंट मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इनसाइड द सॉल्यूशन। सो अगर उसको 3/3 प्लस 43.1 हमने कर लिया तो वी विल बी गेटिंग आवर आंसर दैट इज 0.065, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज सोडियम थायोसल्फेट। और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। Additionally, we can also find the mole fraction of water by just deducting the answer from the one, because mole fractions के additions का जो आंसर होता है वो always 1 होता है, वो आपको ऑलरेडी हमने बताया हुआ है और ये क्लास 11 में भी आपने पढ़ा होगा। So this is how you can get the answer for this question. So अगर पानी के मोल फ्रैक्शन निकाले जाए तो वो हो जाएगी 0.935. So that is what you have to remember, 0.935 mole fraction. Remember mole fraction का कोई यूनिट नहीं होता है because it is a ratio. So ratio के अगर सेम कंपोनेंट के रेशियो होते हैं तो उनके यूनिट्स कैंसल आउट हो जाते हैं and this is unitless quantities. Now our third question is a very important question, that is the calculate the molality of Na plus and S2O3 2 minus. Na प्लस जैसे मैंने बताया कि पानी में जाके वो 2 बन जाएंगे, 2 Na प्लस विल बी प्रोड्यूस, एंड सोडियम थायोसल्फेट में जैसे तो थायोसल्फेट आयन होता है वो एक ही बनेगा। सो इन Na2S2O3, लेट मी पुट द पेज लिटिल बिट अप सो यू कैन सी प्रॉपरली। In sodium thiosulfate 2 Na plus and 1 S2O3 2 minus is present, and in 3 mole of Na2S2O3 यहाँ पे हमने 3 मोल क्यों लिया? सबसे पहले तो हमें ये मालूम है का कि 2 Na प्लस और 1 S2O3 माइनस आयन प्रेजेंट होते हैं, वो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। लेकिन हमने 3 मोल ऑफ Na2S2O3 या सोडियम थायोसल्फेट से स्टार्ट करना है। क्यों? बिकॉज इन द इनिशियली in the question we have given 3 molar solution. So अगर 3 molar solution है तो 3 मोल Na2S2O3 प्रेजेंट है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी Na प्लस की क्वांटिटी या तो Na प्लस के मोल्स निकालने हैं वो 3 मोल के अकॉर्डिंगली निकालने होंगे। सिमिलरली थायोसल्फेट आयन की क्वांटिटी है वो भी 3 मोल के अकॉर्डिंगली निकालनी होगी। सो मोलैलिटी निकालने से पहले 3 मोल ऑफ Na2S2O3 के अंदर 6 मोल डबल Na प्लस होते हैं और 3 मोल S2O3 2 माइनस होते हैं। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला था मोल पर किलोग्राम ऑफ दिस सॉल्वेंट। सो आपको मोल ऑफ Na प्लस यहाँ पे जो मिला अभी वो 6 है, और किलोग्राम ऑफ वाटर, एक्चुअली हमने वाटर के ग्राम निकाले हुए हैं एंड दैट इज 773 ग्राम। तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो वी कैन राइट दैट 0.773 ग्राम। सो यहाँ पे 773 किलोग्राम हो जाएगा, एंड व्हेन वी पुट दैट वैल्यू हियर यू विल गेट योर आंसर 7.73 मोलल। सो आपका आंसर हो जाएगा 7.73 मोलल। नाउ अगर मोलैलिटी ऑफ थायोसल्फेट आयन निकालनी है तो उसके मोल है 3 और उसको भी 0.776 से डिवाइड कर लिया है। सो वी विल बी गेटिंग आंसर 3.86 मोलर। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर द Na प्लस एंड S2O3 2 माइनस सेपरेटली। एंड जैसे हमें पता है कि Na प्लस की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली उनके मोल आएंगे, और S2O3 माइनस की 2 माइनस की क्वांटिटी उससे आधी है तो उसकी भी जो मोलैलिटी आएगी वो एग्जैक्टली हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर 7.73 को 2 से डिवाइड कर लेते तो भी हमें इसका आंसर मिल जाता। तो कभी कभी लॉजिक भी अप्लाई कर लेते हैं तो हमें इजीली आंसर्स मिल जाते हैं, एंड दिस इज हाउ वी कैन गो फर्दर। नाउ लेट्स गो टू योर नेक्स्ट पेज। आज के सेशन का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट अस अंडरस्टैंड, ये मिक्सिंग वाला क्वेश्चन है। So what would be molality of a solution made by mixing equal volumes of
30% by mass of sulfuric acid, the density is given 1.218 gram per cc, and 70% by mass of sulfuric acid, density is given 1.610 gram per cc. नाउ डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मोलालिटी हमें फाइंड करनी है, लेकिन हमें कोई पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन की नहीं करनी है. हमारे पास दो डिफरेंट सॉल्यूशन है और हमने दोनों को मिक्स कर दिया. हालांकि उनके अंदर जो सॉल्यूट है वो सेम है, उनकी जो वॉल्यूम है वो भी सेम है, लेकिन उसका परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पे अलग अलग गिवन है. तो पहले तो डेटा बना लेते हैं. हमें सॉल्यूशन 1 के लिए परसेंटेज W/W 30% गिवन है और सॉल्यूशन 1 के लिए डेंसिटी गिवन है 1.218 ग्राम पर cc. सो ग्राम पर ml या तो ग्राम पर cc आप मेंशन कर सकते हो. सॉल्यूशन 2 के लिए हमें परसेंटेज W/W गिवन है 70 एंड सॉल्यूशन 2 के लिए हमें डेंसिटी गिवन है 1.610 ग्राम पर cc. तो यहाँ पे हमने इसको समझने के लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना लिया है. सो व्हाट इज दैट? दिस इज सॉल्यूशन नंबर 1 and this is solution number 2. सॉल्यूशन 1 के लिए 30% आपको वेट बाय वेट गिवन है और यहाँ पे 70% वेट बाय वेट गिवन है. ये 100 ml और 100 ml हमने अज्यूम किया है बिकॉज वी अज्यूम दैट इक्वल, यहाँ पे गिवन है इक्वल वॉल्यूम, हमने अज्यूम कर लिया 100 ml बोथ द साइड्स. डेंसिटी आपको दोनों की गिवन है. जब आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन हो और या वॉल्यूम गिवन हो तो आप उसका मास निकाल सकते हो. सो मास इज इक्वल टू D इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. सो हमने दोनों तरफ से डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके उनके मासेस निकाल दिए. नाउ आपके पास सॉल्यूशन के मासेस अवेलेबल है. सॉल्यूशन के मासेस दैट इज सॉल्यूशन 1 का मास हो जाएगा 121.8 ग्राम एंड इसका हो जाएगा 161.0 ग्राम. हमने दोनों को मिक्स कर दिया. अब मिक्स करने से क्या होगा? मिक्स करने से सबसे पहले तो उन दोनों के सॉल्यूशन के अंदर रहे हुए सल्फ्यूरिक एसिड के जो मासेस है वो ऐडअप हो जाएंगे. सिमिलरली उनके अंदर जो वाटर है वो भी ऐडअप हो जाएगा. तो आपको टोटल वाटर मिलेगा और टोटल सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम मिलेगा और ये दोनों के हिसाब से आप मोलालिटी निकाल सकते हो. सो वैसे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको दोनों को ऐड करने के बाद जो भी क्यूमुलेटिव सल्फ्यूरिक एसिड का मास मिलता है उसको कलेक्ट करना है, जो भी क्यूमुलेटिव वाटर का मास मिलता है उसको कलेक्ट करना है एंड उस वाटर के मास को आप केजी में कन्वर्ट कर दीजिए और मोल पर केजी निकाल दीजिए. मोल निकालने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का जो भी क्यूमुलेटिव मास जो मिला है उसको आप मोल में कन्वर्ट कर दीजिए. तो लेट अस गो दैट वी हैव डन इट. 30% W/W सल्फ्यूरिक एसिड और 70% W/W सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन जो है उनके लिए हमने डिकोडिंग जैसे आपको समझाया हुआ है बिल्कुल वैसे डिकोडिंग यहाँ पे गिवन है. 30 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 70 ग्राम वाटर. इस तरफ चले तो 70 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 30 ग्राम वाटर. ये मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है. अब जाके आपको वो आइडियाज़ भी समझ में आ गए होंगे कि 100 से अगर उस 30 ग्राम को डिडक्ट कर लेते तो बाकी जो बच गया वो पानी होगा या तो सॉल्वेंट होगा. नाउ इस पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ को 30-70 या तो 70-30 को आपको अपने सॉल्यूशन के ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अकॉर्डिंगली इसको 1.218 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज वी वांट दैट टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन बिकम 121.8 ग्राम. तो अकॉर्डिंगली 1.218 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड यू विल बी गेटिंग मासेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर लेफ्ट साइड. सिमिलरली अगर आप इस तरफ 1.61 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको टोटल मास के हिसाब से कितना सल्फ्यूरिक एसिड और कितना वाटर प्रेजेंट है वो मिल जाएगा. नाउ दोनों सल्फ्यूरिक एसिड को आपने यहाँ से जैसे यहाँ पे एरो से दिखाया गया है आप ऐड कर लीजिए. सो टोटल सल्फ्यूरिक एसिड ग्राम will be 149.24 gram and that will be considered as a W2 because it is a solute. So total water जैसे आप यहाँ से वाटर को लेके आओ और ये वाटर को ऐड अप कर लो तो आपको टोटल वाटर जो मिल जाएगा that will be 133.56 gram and we will consider W1 because it is a solvent.
बस इन दोनों चीज़ों को लेके मोलारिटी निकालनी है आपको। मोलारिटी की फॉर्मूला सिंपल है, मोल पर केजी। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला W2/M2 1000/W1 रख दिया है। W2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 149.24/98 इज़ द मोलर मास। 1000 जो फॉर्मूला में बना हुआ है और 133.56 जो आपको पानी का मास मिला हुआ है जो एडअप करने के बाद उसको यहाँ पे रखा गया है। एंड फाइनली वी आर गेटिंग आवर आंसर दैट इज 11.24 मोलर। So dear friends, today we have understood this very important several numericals जिसके थ्रू हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिले, कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, एक को दूसरे में कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, खास करके डेंसिटी वाली फार्मूलाज़ का यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हैं, ताकि बहुत इजी हो जाता है हमारा कैलकुलेशन, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए, जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। एंड आई होप कि आपको ये सारा जो भी आइडियाज़ आपने डेवलप किए हैं उसको और भी प्रैक्टिस करके आप अच्छे से कर सकते हो। सो वी होप दैट यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स, and do practice, do more practice, stay home, stay safe, and always do practice in a way that you do proper mathematics work so you can easily get your answers and correct answers. So thank you for participating. We love to educate. Thank you.